السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے مارننگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ GHMC کمشنر علمبردی نے GHMC ہیڈ آفس میں امبیڈکر کی 134ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر شیو کمار نائیڈو، وینوگوپال انچارج CE رتناکر، رگھو پرساد، یادگری راؤ اور دیگر بھی موجود رہے۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 عادل آباد ویلڈنگ ورک اونرز اینڈ ورکرز یونین صدر جمیل خان کی قیادت میں یونین کے ایک وفد نے رکن قانون ساز کونسل عامر علی خان کے دورے عادل آباد کے موقع پر ملاقات کرتے ہوئے شال اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور ویلڈنگ ورک اونرز اینڈ ورکرز کو درپیش مسائل پر ایک تحریری یادداشت حوالے کی۔ عامر علی خان نے درپیش مسائل کو تحمل سے سنا اور مثبت جواب دیتے ہوئے ویلڈنگ ورک اونرز اینڈ ورکرز کے مسائل کو حکومت کی توجہ میں لانے کا یونین کے وفد کو یکطرح خن دیا۔ اس موقع پر کانگریس قائد احمد شکیل، نائب صدر شیخ رکن الدین شانو، ثناء اللہ خان، سوامی انا، شیخ زبیر کے علاوہ دیگر حضرات موجود تھے۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے دلت تنظیموں کے رہنماؤں کے ساتھ ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے پروگرام میں حصہ لیا۔ پریم نگر بنجارہ ہلز ڈویژن خیرآباد حلقے میں امبیڈکر کے جینتی کے موقع پر ان کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے۔ میئر نے کہا کہ ڈاکٹر BR امبیڈکر کے لکھے ہوئے آئین کی وجہ سے ہر کوئی حقوق، ذمہ داریوں اور عہدوں کا حقدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بنیادی طور پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے لکھے ہوئے آئین کے آرٹیکل 3 کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تمام شعبے ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ امبیڈکر کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے ناکام کریں گے تبھی ان کے خواب پورے ہوں گے۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے کہا کہ آپ کو ان کی تحریک کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکم دیا ہے کہ کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنے کے مسودہ بل کو فوری طور پر عوام کے تبصرے کے لیے دستیاب کرایا جائے۔ تجویز دی گئی کہ عوام کی جانب سے موصول ہونے والی تجاویز، سفارشات اور اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے حتمی مسودہ تیار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے سکریٹریٹ میں ٹیم کارکنوں، یونین کے نمائندوں اور مختلف محکموں کے اعلیٰ حکام کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی۔ چیف منسٹر کے ساتھ وزراء پونم پربھاکر، پونگولیٹی سنواس ریڈی، حکومت کے مشیر نریندر ریڈی، ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے وائس چیئرمین چنا ریڈی، حکومت کے چیف سیکرٹری شانتی کماری، اسپیشل چیف سیکرٹریز رام کرشن راؤ، جیش رنجن، سنجے کمار اور مختلف محکموں کے سینئر عہدیداروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ لیبر ڈپارٹمنٹ نے تلنگانہ گگ اینڈ پلیٹ فارم ورکرز بل کا مسودہ تیار کیا تاکہ TM کارکنوں کو جاب سیکیورٹی، انشورنس کوریج اور دیگر حقوق فراہم کیے جائیں۔ عہدیداروں نے اس میٹنگ میں چیف منسٹر کو اس میں شامل مسائل کی وضاحت کی۔ وزیر اعلیٰ نے تیار کردہ مسودے میں کئی تبدیلیاں اور اضافے کی تجویز دی۔ وزیر اعلیٰ نے تجویز دی کہ ایک نیا قانون ہونا چاہیے جو ورکرز کی حفاظت کو ترجیح دے اور کمپنیوں اور ایگریگیٹرز کے درمیان ہم آہنگی اور دیگر چیزوں کو یقینی بنائے۔ ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کی 134ویں یوم پیدائش کے موقع پر سابق ضلع عادل آباد کانگریس پارٹی صدر ساجد خان نے عادل آباد ضلع مستقر کے امبیڈکر چوک اور دیہی منڈل کے چاندہ اٹے میں ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے YSR فاؤنڈیشن عادل آباد کی جانب سے امبیڈکر جینتی کی تقریبات میں شرکت کرنے والے شرکاء میں جوس اور پینے کا پانی تقسیم کرنے کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ YSR فاؤنڈیشن عادل آباد نے تقریبات میں شرکت کرنے والے شرکاء میں جوس اور پینے کا پانی تقسیم کر کے سماج کے لیے بہت بڑا تعاون کیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی قائدین، کارکنان کے علاوہ دیگر حضرات بھی موجود تھے۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर सख्त लफ्जी वार गच्चीबौली के जंगलाती इलाके की नीलामी पर तेलंगाना हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गच्चीबौली के कांचा इलाके में 400 एकड़ जंगलाती जमीन नीलाम करने के फैसले पर खामोशी तोड़ दी है। ये जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के करीब वाक़ है। हरियाणा में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने रियासती हुकूमत पर कड़ी नुक्ताचीनी की। उनका कहना था कि मरकज माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है, जबकि कांग्रेस की रियासती हुकूमत जंगलात को तबाह करने पर तुली हुई है। वजीर आजम ने रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय जंगलाती जमीनों पर बुलडोजर चलाने को तरजीह दे रही है। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के दो मॉडल आपके सामने है। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कश्मीर कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पूरा मुल्क याद कर रहा। सियासी पार्टियों के रहनुमा डॉक्टर अंबेडकर की खिदमत और उनकी कुर्बानियों के लिए उन्हें सलाम कर रहे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए लिखा, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हम अहले वतन को इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे के जमहूरी इक़दार पर मबनी हिंदुस्तानी आइन दिया, जो समाजी इंसाफ और चार तरफा तरक्की के लिए सबसे ताकतवर औजार है। उन्होंने मुल्क की तरक्की और इत्तेहाद के लिए जामियत को अपना पहला फर्ज बनाया और सभी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उनके 135वें यौम पैदाइश पर हम समाजी तब्दीली और समाजी इंसाफ के उनके ख्याल के तई अपने गैर मुतज़लज़िल अज़म को एक बार फिर दोहराते हैं। कांग्रेस पार्टी यह हलफ लेती है कि हम आईनी इक़्तिदार की सलामती और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पाबंद रहेंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपने पोस्ट में कहा, मम्मार आइन मुल्क के पहले वज़ीर कानून भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत। बाबा साहेब की अनथक कोशिशों से हमें हमारा आइन मिला। इस आइन ने हर हिंदुस्तानी के लिए समाजी इंसाफ, मसावत, भाईचारा और इंसानी हुकूक की गारंटी दी। हमारा आइन हर एक हिंदुस्तानी का सर कचा कोच है और आज इस हिफाजती ढाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही अर्जियों का सिलसिला जारी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) और तमिलनाडु की इलाकाई पार्टी तमिलगा वेट्टी कशगम टीवीके ने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। दोनों पार्टियों ने इस कानून को अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी और आइन के सेक्युलर जज्बे के खिलाफ बताया। सीपीआई की तरफ से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक तहरीर अर्जी दाखिल की। अर्जी में उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया है कि ये तरमीम आइन की दफ़ा 14 मसावत का हक़, दफ़ा 25 मजहबी आज़ादी का हक़ और दफ़ा 26 मजहबी इदारों को आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि इस कानून के तहत वक्फ जायदाद का इंतजाम अब सियासी मुदाखलत का शिकार हो सकता है, जिससे मुस्लिम तबके की मजहबी और सकाफती खुद मुख्तारी मुतासर होगी। इस दौरान तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और रहनुमा विजय की पार्टी तमिलगा वेट्टी कशगम ने भी वक्फ कानून को चैलेंज करते हुए एक अलग अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। टीवीके का कहना है कि ये तरमीम रियासतों के दायरे इख्तियार में दखल अंदाजी करता है और अक़लियती तबके के मुफादात को नुकसान पहुंचाता है। अर्जी में उसे एक सियासी तौर से मुतासरा कदम करार दिया गया।
मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती पर निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव के बाद कशीदगी का माहौल बरकरार है। पथराव के वाक़े की मुखालिफत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अरकान के जरिए हनुमान चौक पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इस दौरान हालात को बेकाबू होता देखकर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया। इस मुजाहरे में शामिल वीएचपी और बजरंग दल कारकुनान हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हमले किए कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे। उनका कहना है कि पत्थर मारने वाले सभी कसूरवारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाए। मुजाहिरीन ने कर्नलगंज में दोबारा घुसने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें खुदेड़ दिया। इसके बाद वो वापस कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुना के हनुमान चौराहे पर तकरीबन 11:30 बजे से ही वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनान जमा होने लगे थे। सभी कलेक्टर दफ्तर में एक अर्ज़दाश्त सौंपने जा रहे थे। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने कहा है कि इसराइली फजाइया ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 90 से ज्यादा अहदाफ पर बमबारी की। तर्जुमान ने कहा है कि निशाना बनाए गए अहदाफ में हथियारों के डिपो, सेल और तंसीबात शामिल हैं, जहां से इसराइल की तरफ रॉकेट दागे गए थे। तर्जुमान ने कहा है कि हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया गया। गजा में सिविल डिफेंस ने ऐलान किया कि इसराइली फजाई हमले ने शुमाली गजा की पट्टी में अस्पताल अल-अहली और बेप्टिस्ट को निशाना बनाया, जिससे उसकी एक इमारत तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अस्पताल पर बमबारी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक और तनाज़ुर में इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमास के मुतअद्दिद अरकान शुमाली गजा में एक धमाका खेज आला नस्ब करने की कोशिश के दौरान मारे गए। तर्जुमान ने कहा है कि रफा के इलाके और जनूबी गजा की पट्टी में मोराग कॉरिडोर में भी इसराइली ज़मीनी कार्रवाई जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि किसी भी मुल्क को गलत तरीके से कारोबार करने के लिए छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये बात साफ की कि किसी भी तरह के टैरिफ में छूट का ऐलान नहीं किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिकी कस्टम ड्यूटी और महकमे सरहदी तहफ़्फ़ुज़ ने एक रहनुमा उसूल जारी किया था, जिसमें बताया गया कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अशिया को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी गई है। व्हाइट हाउस के सीनियर सलाहकार स्टेफन मिलर ने लिखा कि ये सामान अब भी चीन पर पहले किए गए ऐलान के तहत 20% टैरिफ के दायरे में आते हैं। वो सदर ट्रंप के इस हुक्म की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर गैर कानूनी ड्रग्स के मसले की वजह से टैरिफ लगाने का फैसला किया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।